All right. So let us start the class. A very good afternoon to all of you. And today Good we are going. afternoon, ma'am. Yes, and Good we are afternoon, going. ma'am. Good Yeah, afternoon, ma'am. good afternoon. And all of you, you need to keep your cameras on. Otherwise, the class will not start. Keep your cameras on. And those of you who have not switched on their cameras, they will be marked absent. Like I'm already noting down the मैम names. डिस्कनेक्ट हो जाता है. My network is so weak. Yes, ma'am. Same here, ma'am. Okay. So can you see the screen? Yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, please, I will be asking questions, and after each slide, I will be asking questions. So please pay attention. And roll number 43, why your cameras is not on? 6175. Yes, ma'am. Keep your cameras on. Ma'am, network issue है ma'am. All right, On Being a Bore by Robert Lind. There you see the photograph of Robert Lind. Now about the author, which you need to understand and which you need to write down. So you have to write down the main points about the author. Supposing I give you a question, introduce the author of On Being a Bore. Then you will have to write about the author. And the important points are, what was his name? Where was he born? When did he die? And what type of work what was his writing style? And where was he educated? Such things are important. So Robert Wilson Lind, the full name is Robert Wilson Lind. He was an Anglo-Irish writer and editor of poetry. He was a literary essayist. He used to write essays, and he was a strong Irish nationalist. So he was born on 20th of April. Now this is not important. You can say मैम Robert. स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. मैम स्क्रीन Yes, पर ma'am. नहीं दिख रहा है. वहीं पे Yes, है मैम, ma'am. जहाँ पे था वहीं Not है. every receiver. नहीं रुका हुआ है. दिख नहीं रहा है मैम. ये दिख रहा है? नो मैम अभी तो नहीं. मैम, मैम स्क्रीन दिख रहा है मैम, लेकिन चैप्टर खुला नहीं है मैम. फाइल नहीं खुला है खुला ही पीडीएफ नहीं मैम. ओपन कीजिए ना है. मैम. नहीं हुआ है. पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है. ये तो ओपन बिल्कुल है. How am I यहाँ पे seeing? ओपन हम शो लोग नहीं कर रहा है मैम. हम लोग हम को नहीं लोग दिख को रहा है मैम. शो यहाँ नहीं पर हो शो रहा नहीं है. कर रहा. How is it possible? If it is showing to me, it will show to you also. नो मैम, मैम network शो issue. नहीं हो रहा है. मैम नेटवर्क. अभी शो हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Okay. So about the author, On Being a Bore, an essay in a prose section. And this is the author, Robert Lind. Now my first question is, write down the question. Introduce the author of On Being a Bore. Write the question. Introduce the author. Introduce the author of On Being a Bore. Now the answer. So when you
are writing about the author, you will be writing about some important details about him, like his full name. So Robert Wilson Lind was an Anglo-Irish writer, and he was an essayist. He was editor of poetry, and he was born on 20th of April 1879 at Belfast, United Kingdom, and he died on 6th of October in 1949. You can take down the details from the slide. And at Hampstead, London, United Kingdom. And about his education. He was educated at Royal Belfast Academical Institution, and in which is in Queen's University, Belfast. And his nationality was, he was a British Irish. So the slide has complete details about the author. The important points are his full name. He was a literary essayist. And he was born, when was he born and when did he die? Where did he die? And where was he educated? So this one slide will answer all your questions. Now the next slide, we're talking about his works. What did he write in his lifetime? So he wrote The Pleasure of Ignorance. There are some novels which he wrote. I Tremble to Think. The meaning of The Pleasure of Ignorance means he's completed a work on the pleasure of ignorance. It means when you do not know anything, it will give you happiness, pleasure. And ignorance means something which you do not know. I Tremble to Think, another of his very, very famous work, and Old and New Masters. And then he wrote a book on essays, which was the name of which was The Little Angel. So these are the work which you may include about the author. You can write that he has written during his lifetime. He has written The Pleasure of Ignorance, I Tremble to Think, Old and New Masters, or The Little Angel, or a book of essays. Now about Robert Wilson Lind. What kind of a writer he was and what was his status? वो उनको अभी तक माना जाता है till date. It means अभी तक ये माना जाता है कि he occupies a prominent place, a very important place among the first rank of essayists. It means he was in the first rank. And ये अभी तक ये माना जा रहा है till date. After completing his education, he became a journalist as well. And after his education, he wanted to become a journalist. He became a journalist. He was the editor of the Daily News. The Daily News is a newspaper, and he was the editor of this newspaper. And he used to write an essay every week for the New Statesman. The New Statesman is also a newspaper in which he was writing one column every week. हर हफ्ते में वो एक कॉलम उनके नाम से था और वो लिखते थे. मैम ये न्यूज़ लिखते थे? नहीं, न्यूज़ नहीं लिखते थे, वो कुछ तो कुछ कॉलम लिखते थे, वो एडिटर थे. He was the editor और वो न्यूज़ एग्जांपल हो गया. हाँ, हेलो, न्यू स्टेट्समैन में वो अपना एक कॉलम लिखते थे और ये कॉलम था जैसे ऑन बीइंग अ बोर और उस तरह की चीजें वो लिखते थे जो कि उनके नाम से एक कॉलम तय था और वो एक कॉलम
और एक एवरी वीक, हर एक हफ्ते उनके नाम से एक कॉलम में वो लिखते थे, और जिसका आधार सामने आपके है, ऑन बीइंग अ बोर, इस तरह के एसेज वो लिखते थे। और बहुत सारी चीजें उनकी हैं जो आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे आप। सेकेंड ईयर में उनका है फॉरगेटिंग, वो किस तरह से लोग भूल जाते हैं और क्या क्या चीजें लोग भूल जाते हैं, और कितनी मुश्किलें सामने आती है, और थोड़ा सा हंसाते भी हैं वो थोड़ा मजाकिया भी हैं, और सोसाइटी पर समाज पर एक उनका कमेंट और कटाक्ष भी रहता है। और लेकिन बेसिकली उनका एक कॉलम एंटरटेनमेंट के लिए होता था, और वो bored now. so he was writing every week for the New Statesman under the pseudonym YY। pseudonym का मतलब होता है वो अपना नाम रॉबर्ट लेन नहीं लिखते थे, और अपने कॉलम में YY लिखते थे। इट मींस अपना नाम वो हाइड करते थे, और he was writing by the name of YY। मैम रिवोट विल्सन जो उसको समझिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या ऊपर वाला एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या मतलब वो लिखने में वो इतना अच्छा लिखते थे कि टॉप रैंक में उनको माने जाते हैं। बेस्ट राइटर्स, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, टॉप रैंक में उनकी स्टेटस है। ठीक है, तो रॉबर्ट विल्सन लिन occupies the prominent place, a very important place among the first rank of essayists till date। ठीक है, जैसे अव्वल दर्जे के वो लेखक थे, फर्स्ट रैंक में। Understood? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Now the essay. The essay. Yeah, ma'am. Now the essay. The idea expressed in this given essay is very humorous on one hand and satirical on the other। जो आइडिया उन्होंने एक्सप्रेस किया है इस ऐसे में, वो एक तरफ तो बहुत आपको हंसाएगा, बहुत ह्यूमरस है, हंसी मजाक वाली बात होती है और एंटरटेन करते हैं, और दूसरी तरफ वो एक व्यंग भी करते हैं समाज पे। एक व्यंग है, एक कटाक्ष है, सटायरिकल। सटायर मीन्स व्यंग, किस पे? समाज पे। The essay is reflections based on people's ideas and preoccupations। और ये ऐसे किस आधार पे है? ये ऐसे उनके एक्सपीरियंस के आधार पे है। वो बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते थे, इसलिए कि वो जर्नलिस्ट भी थे और एडिटर भी थे, तो बहुत बहुत उनके लिए जरूरी होता था कि बाहर समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। और एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि न्यूज इकट्ठा करना और जानना लोगों की सोच क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और लोग खाली टाइम में क्या करते हैं। तो ये जो ऐसे वो लिखा करते थे, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। उनका तजुर्बा जो बाहर के लोगों से मिलकर के होता था, उसी पर बेस्ड हुआ करता था इनके एसेज, और इसीलिए इतना एंटरटेनमेंट हुआ करता था, और इसीलिए लोग इसको बिल्कुल आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ ऐसा होता है और ऐसे ही होता है। इसलिए कि बहुत रियलिस्टिक बात होती थी, जो फैक्ट्स के बारे में बात होती थी, कोई काल्पनिक नहीं लिखते थे, जो समाज में हो रहा है उसी पर वो ऐसे लिखते थे, और उसी पर वो व्यंग भी करते थे समाज पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑन बीइंग अ बोर, द स्टोरी टेल्स अस अबाउट देयर सो मेनी बोर्स इन द सोसाइटी। तो उनको कैसे मालूम पड़ा? वो जगह जगह गए, मिले सबसे, देखे, दुनिया देखे, समाज देखे, और तब वो जाने कि अच्छा, ऑन बीइंग अ बोर भी एक अच्छा टॉपिक है लिखने के लिए। और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से, उनके राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल हुआ करती थी, और कोई भी डिफिकल्ट वर्ड ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी एंटरटेनिंग। मतलब उनके ऐसे पढ़ के लोग खुश हुआ करते थे, इसलिए उनके नाम से एक कॉलम था जो लोग पढ़ के और एंटरटेन होते थे। बोर्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे। और ये बोर्स क्या है? समाज में कितने बोर्स होते हैं, कितने तरह के बोर्स होते हैं। जैसे मैंने मजाक भी किया था, एक तरह के बोर वो भी हैं जो कभी कैमरा ऑन ही नहीं करते, जब देखो तो बिल्कुल उनको कभी देख ही नहीं पाता इंसान, जब पूछो तो ये एक तरह की बात होती, माई नेटवर्क इशू। तो इसे भी हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं कि ऐसा क्या है कि Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, क्या? ma'am. ओके, हु इज दिस या मैम मैम? लेकिन कभी कभी सच में भी होता है नेटवर्क इशू मैम। तो मैं क्या करूं?
आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग जैसे पिछले क्लास में मेरा हुआ था. Yeah, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes. So we understand the technical problems. That is no problem. So the subject matter is the bores in the society. Okay. The writer highlights the variety of bores in society. Many kinds of bores in the society. There are not only one, but there are many. So now he is trying to categorize कितने तरह के bores होते हैं. अब उसका point बना के लिखिएगा तो जल्दी जल्दी समझिएगा. Number 1, number 2, number कोई 3. बहुत ज्यादा बोलता है. जैसे तुम अभी बोल रहे हो. ओके. ऑलराइट, आप नंबर 1 लिखिए. अगर आपका नोट्स बनाना है तो टेक्निकली फटाक से एकदम जल्दी से लिखना शुरू करिए. स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली विथ बोर, द टाइप्स ऑफ बोर. नंबर 1. एंड व्हाट इज द नंबर 1 बोर? द ट्रेन बोर्स. सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द ट्रेन बोर? क्या है कहानी? Talking to people. Talking to people. And there are many people who, those who are people who are traveling, they want to Passengers. talk to other people. लोगों को बहुत मजा आता है ट्रेन में आ जाते हैं और टाइम पास के लिए इससे उससे जिससे तिससे they try to talk to different people who are also traveling, and many people may like it but many people do not like it. तो ट्रेन बोर्ड ऐसे लोग होते हैं जो who like talking to people without realizing they might bore other passengers, और उनको जरा सा भी realization नहीं होता है that वो दूसरे passengers को कितना बोर कर रहे होते हैं. Yes, ma'am. So number 1, the train bores. Number 1, the train bores. Now यहाँ पर एक कहानी कर रहे हैं. The writer tries to give an example of the train bore. वो क्या example था आपको याद है? क्या एग्जाम्पल था? कि जब राइटर ट्रैवल कर रहे थे एक बार, मैंने कहा वो अपने तजुर्बे पे वो लिखा करते थे. तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ एक अमेरिकन, बहुत ही अमीर, वेरी रिच अमेरिकन, ही वाज आल्सो ट्रैवलिंग विद द राइटर रॉबर्ट लिंड. और जब दोनों प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, द अमेरिकन एंड रॉबर्ट लिंड, तो उन्होंने देखा कि जो अमेरिकन है बहुत ही जो बहुत महंगी घड़ी पहने में, उन्होंने बहुत सस्ती सी एक वॉच खरीद ली. He bought a very cheap kind of watch from the platform. And when Robert Lind asked him, why are you buying a watch? You already have such an expensive watch. Why you buying this cheap kind of watch? So the American did not say anything. उसने कुछ कहा नहीं और बोले कि you will know, you will come to know. और जब वो दोनों आके बैठ जाते हैं तो बैठे हुए भी 2 मिनट भी नहीं हुआ था कि एक बंदा आता है कहीं से और देखते ही उस अमेरिकन को देख करके और पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम? और समय पूछने के बहाने से वो उनके बगल में आके बैठ जाता है. अब क्या करेंगे वो अमेरिकन? टाइम बताएंगे या क्या करेंगे? रॉबर्ट लिंड चुपचाप देख ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या होगा. तो उस अमेरिकन ने वो घड़ी, उसने जो चीप वाली घड़ी जो उसने खरीदी थी, द चीप वॉच विच ही बॉट, he takes it out from his hand and he throws it out of the window. तो जैसे ही उस the moment the stranger came and asked him for the watch, for the time, he took out his watch and threw it out of the window. और इतना ही नहीं, उसने बिल्कुल पागलों वाली एक शक्ल बनाई ताकि लोग डर जाएं कि ये तो पागल जान पड़ता है, टाइम पूछा था हमने और ये तो घड़ी को बाहर फेंक दिया. और वो जो स्ट्रेंजर था वो डर के मारे भाग जाता है और फिर वापस कभी, और बाकी लोगों ने भी ये तमाशा देखा और इस पूरे सफर में उनसे कोई बात नहीं करने आया कि पता नहीं ये पागल है, कुछ भी कर लेगा. तो अब वो बड़े आराम से वो अपना जर्नी बिताए बिना किसी दूसरे के डिस्टर्ब किए हुए. तो ये घड़ी इसलिए वो खरीदते थे कि जैसे ही कोई टाइम पूछेगा तो मैं यही नाटक करूंगा, आई विल डू द सेम
I will repeat the same story so that I can live in peace without being bored. लेकिन रॉबर्ट लिंड ये कहते हैं, but Robert Lind is of another view. He says that no, but I like traveling by train. Because when you are traveling by train, you can listen to so many stories. You can see a lot of dramas. You can listen to so many stories, so many people. You can talk to so many people at the same time. Your time will pass in a very nice way. So we'll be watching a ticket with watching a play, watching a movie without any ticket. So Robert Lind, American से सहमत नहीं है. He does not agree with the American. He says that I like traveling by train because it is, I feel entertained and I feel I enjoy myself. So this was number one. I am getting back to you. Now, why all of you are with your cameras off? तो दूसरा किसी को नुकसान होने लगता है मैम। नहीं, आप रुचि दूसरा कोई बोर आप होने रुचि को लगता बात है। करने, let her talk, let her talk. So what is the first, who are the first type of bores according to Robert Lind? Ma'am, who was trained or Hello? मैम कोई ऐसे पैसेंजर होता है ना जो बोलता रहता है, मतलब दूसरे लोग वो हो जाते हैं उससे। Okay. क्या बोलते हैं Okay. उसको? So what is the idea of Robert Lind? Does he like traveling by train? क्या ऑथर को अच्छा लगता है ट्रेन से ट्रैवल करना? Yes, No, ma'am. ma'am. No. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Explain करिए why he likes traveling by train. Now tell me. अब उसने उस अमेरिकन के बारे में क्या बात बोली थी? कौन सी कहानी बोली थी उस अमेरिकन के बारे में? मैम वॉच वाला। मैंने उसको 15 मिनट बोला है, आप एक लाइन में खत्म कर लिए बोल करके। All right. Again, I'm starting from the beginning. If you will not answer, okay. The train bores. I am starting again. You need to answer questions, otherwise you will not be benefiting. The author talks about the train bores, and I want students to participate and students to answer. So the train bores like talking to people in the train. The author likes to travel by train because he can listen to many stories. He talks about a rich American. वो एक अमेरिकन के बारे में बात करते हैं, और जब ऑथर उनके साथ एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा वो प्लेटफॉर्म पे एक सस्ती घड़ी खरीदते हैं. When they were traveling together, the author saw that he bought a cheap watch. And when both of them were sitting in the compartment,
One person comes and asks for the time. एक अजनबी आता है, टाइम पूछता है, और अमेरिकन ने घड़ी खोल के बाहर फेंक दी और अपने को पागल घोषित करने की कोशिश की, और इस तरह से वो बोर होने से बच गए. Yes, ma'am. Now, if you will not answer, I will not be losing anything, but you have to answer. Yes, ma'am. Next, he talks about, and yes, the writer does not agree with the American. The American does not like talking to people, but the author likes to travel by trains because then he says that he can see lot of things happening. He will enjoy while traveling because he can listen to so many stories of so many different people. So the author likes to travel by train. This is number one, the train bores. I want you to write questions I'm giving you. You write the answer and submit it to me as an assignment. मैम थोड़ा हिंदी में मैंने यही कहा कि मैं जो मैम। समझा रही हूँ उसको आप लिखिएगा और लिख के हमको सबमिट कीजिए, कोशिश कीजिए लिखने की. मैं तो बता ही रही मैम हूँ. कहाँ सबमिट करना है? मैम कहाँ सबमिट करना है लिख के? हम आपको देंगे अपनी ईमेल आईडी, आपको वहां सबमिट करना है, ठीक है? और जब तक नहीं Okay. क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे तब तक नहीं समझोगे. कंटेंट तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, यू हैव द कंटेंट. तो इसको देखो और लिखने की कोशिश करो. मैं तो समझा ही रही हूँ. क्लास में नोट्स लिखा करो. क्लास में हिंदी भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है. तो डोंट गिव मी कि हमको समझ में नहीं आया, बिकॉज हिंदी भी में भी बात हो रही है. इंग्लिश वेरी सिंपल यूज कर रहे हैं हम लोग ताकि आप समझ सके, और इतने धीरे पढ़ा रहे हैं. ईमेल पे सेंड करना है मैम आपके. हाँ, तो पहला क्या है? द ट्रेन बोर्ड्स. Boards. These are people who do not like to talk to people. And then about the American आप लिख सकते हैं. There was one American, how he Don't- avoided people by behaving that he was mad. Right? Yes, ma'am. And now, the third point is the author does not agree with the American because he enjoys traveling by train. अब इतना आपको होगा. नंबर वन, the train bores. Number two, the golf bores. The golf bores are those, वो ऐसे हैं, गोल्फ एक गेम है. जो गोल्फ खेलते हैं वो बस गोल्फ के बारे में बात करते हैं. आपने कभी गोल्फ कभी देखा नहीं, कभी गोल्फ बॉल भी नहीं देखा आपने, और आपसे अगर खेला है कोई मैम. आपके बारे में, मैं आपके बारे में नहीं कर रही हूँ. अगर आप गोल्फ कभी नहीं खेले हैं तो गोल्फ बॉल्स ऐसे लोग होते हैं जो गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ के बारे में बात उनसे करते हैं जिन्होंने कभी गोल्फ का बॉल ही नहीं देखा. तो जाहिर सी बात है जो जिनसे वो बात कर रहे हैं वो तो अच्छे खासे बोर हो रहे होंगे ना. तो ये भी अपने Yes, एक्सपीरियंस, ma'am. हाँ, तो ये भी अपने एक्सपीरियंस है. ठीक है. थर्ड इज मोटरिंग बोर्ड्स. अब मोटरिंग बोर्ड्स क्या होते हैं? जब रोड्स खराब होती है, व्हेन द रोड्स आर बैड, या ट्रैफिक जैम में जब गाड़ी बहुत धीरे चल रही होती है तो आप बहुत बोर होते हैं. नंबर वन, आप बोर होते हैं. लेकिन कौन बोर नहीं हो रहा है? वो बोर नहीं हो रहा है जो रोड के दोनों तरफ भिखारी बैठे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं. आपकी गाड़ी जहां धीमी हुई, दे विल कम एंड आस्क फॉर मनी. वो मांगने आ जाते हैं और अपनी अच्छी खासी कमाई उनकी हो जाती है, और आप तो बोर हो जाते हैं. जैसे गोल्फ बॉर्स, वो तो बोर नहीं हो रहे, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं अपने गोल्फ के बारे में बात होने के लिए. बोर कौन हो रहा है? जिनसे वो बात कर रहे हैं, तो सुन रहा है. जो सुन रहे हैं. सही है. Yes, अब ma'am. the third, the political bores. अब political bores कौन होते हैं?
जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब मिलो तब पॉलिटिक्स, जब मिलो तब पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिकल बोर्स होते हैं, दे ओनली विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, जो कि आपको ठीक है कभी कभी ठीक है, लेकिन हर वक्त जिसको पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है और उनसे आप बैठ के दिन में पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं तो आप बोर हो उनको जाते हैं। तो आप बहुत बोर हो जाते हैं। सही, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आपको सुनना भी लगता है कहीं उठ के चले जाएं। मैम ये Yes, बिहार में ma'am. ज्यादा होता है। या और अब देखिए द वन वे बोर्स। अब वन वे बोर्स क्या होता है, एक बंदा बोल रहा होता है और बाकी लोग चुप रहते हैं, चुप हैं, तो जो बंदा बोल रहा था एंजॉय कर रहा है, वो अपनी कहानी बोल रहा है और बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, ऑडियंस रहे नहीं रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, ऑडियंस सो भी गए फिर भी बोले जा रहे। या मैम। तो वन वे बोर्स होते हैं वो, और जो सुन रहा होता है वो बोर होता रहता है। टू वे बोर्स, अब ये टू वे बोर्स आप पीपीटी में देखेंगे, उसका इमेजेस समझ में आपको और भी आएगा। टू वे बोर्स वो होते हैं जो दो दोस्त अगर बहुत दिन के बाद मिलते हैं, when two friends meet after a long time they have so many things to talk to, but after some time, कुछ समय के बाद वे दोनों के पास टॉपिक जब खत्म हो जाता है, nothing to talk about, तब बोर हो जाते हैं लोग, और तब बोर होकर के वो लोग एक दूसरे को बोर करना शुरू कर देते हैं। ओके, यस मैम। वन वे बोर, टू वे बोर्स। अब क्या होता है, चाइल्डहुड बोर्स। कभी कभी बच्चे adults को बोर करते हैं, when sometimes children bore adults and many times adults bore children. टू वर्ड्स समझाइएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। Two way boards। यस मैम। जब तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत दिन के बाद मिलते हो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ बातें करने की होती है, और तुम्हारे दोस्त के बाद भी बहुत कुछ कहने को सुनने के लिए होता है, बहुत कहानियां। अब 5 साल के बाद मिले तो दोनों के पास बहुत टॉपिक से बात करने की, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब सारी कहानी खत्म हो जाती है तो तुम दोनों एक दूसरे को बोर करना शुरू कर देते हो। अब कोई टॉपिक बचा नहीं, कोई कहानी बची नहीं, सब तो कह दिए सुन लिए, तो सब दोनों एक दूसरे को बोर करते रहते हो। टू वे बोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्डहुड बोर्स। कभी बच्चे भी बोर करते हैं अडल्ट्स को, कभी अडल्ट्स बोर करते हैं बच्चों को। तो यहाँ राइटर ने बताया है कि किस तरह जब वो छोटे थे तो एक अंकल आया करते थे और वो बस पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे और ये बहुत बोर हो जाते थे। तो चाइल्डहुड बोर्स वही होता है, कभी बच्चे बोर, कभी अडल्ट बोर, ठीक है। उसके बाद होता है रूट बोर्स, मतलब जो खामखा रास्ता बताते हैं। मतलब जाना है अगर किसी को दानापुर, तो ऐसा रास्ता बता देंगे कि वो पहुंच जाएगा, पटना सिटी पहुंच जाएगा। जिनको खुद आता नहीं है, रूट समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ सलाह जरूर दे देंगे, बिना पूछे एडवाइस देना। हाँ बिना पूछे। बहुत लोग हैं, आप पूछेगा यहाँ जाना नहीं, यहाँ तो अच्छा वो जाना है, ऐसा करिए आप ये बस पकड़ के वहां चले जाइए, गलत वो जगह पहुंचवा दें। गलत जगह पहुंचा देंगे आपको। और ये भी राइटर ने वो अपने तजुर्बे से उन्होंने देखा कि एक महिला थी जो बस स्टैंड से उतर के बोली कि बाप रे बाप 5 घंटे लगे पहुंचने में, इट टुक मी 5 hours टू रीच फ्रॉम दैट प्लेस। तो बगल वाला पूछता है कहाँ से आ रहे हैं, तो जब उसने बताई तो ओ आपने अगर बस नंबर 5 पकड़ा होता तो आप 2 घंटे पहले पहुंच जाती। तो राइटर वहीं पर था और उन्होंने कहा जब 5 नंबर बस पकड़ती तो वो शाम तक भी यहाँ नहीं पहुंचती। तो इस तरह का तजुर्बा राइटर ने देखा है, सुना है, समझा है, और तब ये उन्होंने एक कहानी बनाई है। और तब उन्होंने एक काइंड्स ऑफ बोर्ड्स का बनाया, टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ बोर्ड्स इन सोसाइटी। और उसके बाद है द लास्ट है द वॉर बोर्ड्स, मतलब जो कभी लड़ाई में वॉर में काम कर चुके हैं, उनके पास और बस एक ही कहानी होती है, लड़ाई की कहानी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस वही कहानी बोलते हैं वॉर के बारे में, और कहानी उनके पास नहीं होती है। तो ये कुछ समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उनकी वही कहानी, वही एक ही कहानी, एक ही शक्ल, एक ही कहानी, और सब कुछ
कोई चेंज नहीं है, तो भी लोग बोर हो जाते हैं। जो लड़ाई के बारे में बात करें, हाँ, जैसे कोई आर्मी में है, आर्मी में रिटायर्ड कोई ऑफिसर हैं, तो वो उनके पास एक ही कहानी रहती है, उसमें ये वर्ल्ड वार में ये हुआ है, वो हुआ है, जो गोली लग गई है। बस वही। तो उसको कितनी बार वो सुनाते हैं और उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि किसको हमने क्या बताई, लेकिन उनके पास एक ही कहानी होती है। तो फिर आखिर में ये राइटर बोलते हैं कि और ऐसे bores are all in one way or the other. Many bores, some or many at one point of time bore another. मतलब राइटर ने कहा है कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे को, हर किसी को तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जिंदगी में जरूर बोर करता है। और जैसे आप भी हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अरे भाई म्यूट कर लो। और ये लास्ट पैराग्राफ है, मतलब उन्होंने बताया कि जब राइटर बहुत छोटे थे, 10-11 साल के थे, तब वो बहुत बड़े, अपने खुद ही बहुत बड़े बोर थे, और इतने बड़े बोर थे कि अपने को बोल रहे हैं कि आई वॉज अ बॉम्ब बोर, मतलब मुझे देखते ही लोग भाग जाते थे। और उन्होंने कई लोगों को काफी बोर किया हुआ था, इसलिए एक अमेरिकन, एक उनके अंकल थे, जो जब उनके घर पे आया करते थे, जब बच्चे थे तो छोटे थे, तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के बारे में बात किया करते थे। और जब पॉलिटिक्स के बारे में बात करते करते वो इतना ऊब चुके थे रॉबर्ट लिंड, तो उन्होंने कहा मैं पता चलाता हूँ। और अगले दिन जब वो घर आए तो बोले कि चलो इसको मैं आज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और बोले अंकल चलिए लेट्स गो आउटसाइड अंकल। और बाहर निकल के वो बन जाते हैं एक बच्चा गाइड, और उन्हीं के घर को बोल रहे हैं कि ये घर मिस्टर सो एंड सो का है, और ये घर किसने कौन सी सदी में बनी है, और ये पेड़ देखिए किसने लगाया है, और ये सड़क देखिए किसने बनाया है। और वो इतना बोलना शुरू किया कि वो जो उनके अंकल थे, कि वो सो फड अप कि दोनों अपना अपना दोनों हाथ कान पर ले जाके बोले कि ओ माय गॉड यू आर सच अ बिग बोर। तो इससे वो एंड कर रहे हैं वो ऐसे, ये कहते हुए कि मैं भी बचपन में बहुत बड़ा बिग बॉम्ब, आई वॉज अ बिग बॉम्ब बोर। यही ऑन बीइंग अ बोर। फिर अब पीपीटीज आ जाता है जो आप देखते समझते हैं, जैसे कि ट्रेन बोर्ड्स है, देखिए ट्रेन में आप कोई ना कोई जरूर आ जाता है, और घड़ी खोल के बाहर फेंक देना, और वो सब कहानी जो सुने हैं अभी आप सुने। और ये देखिए घड़ी, व्हाई डिड द मैन थ्रो हिज वॉच आउट ऑफ द विंडो, अमेरिकन ने क्यों घड़ी बाहर फेंकी, ताकि वो बोर ना हो सके। और ये यस मैम। जैसे ही किसी ने पूछा क्या टाइम है, बस खोला और खिड़की के बाहर फेंक दिया, और पागल का अभिनय करने लगा। और ये देखिए रूट बोर्ड्स हैं, जो कि बच्चे जहाँ गाड़ी रुकी बस बच्चे मांगने आ गए, इनकी तो बंद पड़ती है, बोर हो रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे लोग। हम लोग बोर हो रहे हैं लेकिन वो खुश हो रहे हैं। अब इतने बोर हो रहे हैं कि गाड़ी या से मैम। या मैम, मैम दूसरा क्लास भी है, हो गया अब छोड़। आई विल डिसाइड कि आपको कब जाना है। ओके, दिस इज द गोल्फ कोर्स, जो गोल्फ खेल रहे हैं, गोल्फ के बारे में समझा रहे हैं, ये दोनों बच्चे बैठे हुए बोर हो रहे हैं, ये लोग कोई मतलब या नहीं मैम। है। या मैम, ओके, दिस इज अ चाइल्ड बीइंग बोर्ड, स्लीपिंग बोर्ड। बोर्ड। ऑलराइट,